Welcome to my YouTube channel, and this is your tourist guide Abdul Hashim here. So guys, you just can have a look like how the schools look like. It's totally 3 floors school, and many kids are getting education over here, and which is purely built here to help the kids of Dharavi slum. And you can see the few of the water purifiers here. Okay, so we need to drop the Madi Drop tablet on this water machine, and I would also like to show you like how it look like from inside. So these are the stairs here. So I'm just climbing the stairs, and many kids' futures are depend on this school, like how the education they provide, and the quality of education is like quite brilliant. And I guess the schools are like locked off now. Maybe sometime later I will show you the, and we do also have CCTV cameras here, and it has a few classes over here. A great morning to you guys, and I'm really very excited for today. And the journey is still on, and I'm on the war here. The war is all about to get safe from the diseases that all the people are struggling over here in Dharavi slum. And the people are like really very afraid of getting all the diseases. And one company over there at the United States of America, in states of Virginia, they have been launched a product which name is Madi Drop, where you get more than 99.9% safety with accuracy, which has been established, and it's going great there with the United States. And now it's time to free the slum with all the diseases. And we also do have other random projects for other diseases, but for now I'm going to be shooting today Habib Raza School, which is a pride of Dharavi slum. The reason is that we are helping all the poor kids, and also the middle class kids comes here, and we don't charge any money for the kids who are poor, and the people who can afford the money, they pay a very good amount of money. So you can see a bit boardings over here for the schools and what they do, and lots of things, guys. They also have a kind of an NGO which supports the kids and their parents. The name is Habib Raza Primary School. So they also having a bit setup here. They run multiple campaigns for the different reasons. They also give this space which you see behind me, which is run by a few of the government people to have some small sort of a function or an event which they get some money to help this poor kids. So I'm going to be introducing you to a very important person who is the, I can say, a founder, and his father has founded this school, and now he's leading the school. You can see some of the certification, the politicians of our India, which has been worked a lot to grow the India. And so all the events that they have been ran here before, you can see some of the copies over here as a memory. So these guys are great, and they are doing a great job, and I'm going to be supporting them fully with all my passion and dedication. Assalamu alaikum. खैरियत? आपका नाम क्या है हजरत? सैयद मोहम्मद खालिद। आपका नाम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह खालिद साहब। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो वालिद साहब है
प्यारे लाल हजरत, तो उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। नाम है, पेट नेम प्यारे भाई है। जी जी, उनसे मैं जब पूछा तो मुझे यही बताए थे। पेट नेम प्यारे भाई है। और हमेशा उन्होंने मतलब बोलते ना, जो भी मैंने उनसे कभी भी कुछ पूछा या किया, वो हमेशा वो मदद करने के ही बारे में बात करते थे। और उन्होंने ज़िंदगी भर वही काम किए और ये स्कूल को स्थापित करके बहुत सारे बच्चों की, जो मेन हमारे स्कूल की तकलीफ़ है, रिक्वायरमेंट है एजुकेशन, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी बच्चों की मदद की है। और वही काम को आप अभी आगे बढ़ा रहे हो, तो इसलिए आपसे मुलाकात हुई और मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि माडी ड्रॉप एक हमारे एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो एक ऐसी सेरेमिक टैबलेट है, उसकी साइज़ कुछ इतनी है। तो वो टैबलेट अगर आप अपने टैंक में डालते हो तो आपको तकरीबन 1 साल तक का ऐसा प्योर पानी मिलेगा जो 99.9% बैक्टीरिया, जर्म्स और तमाम तरीके की चीज़ें जो है उसको वो ख़त्म कर देगा और एकदम प्योर वाटर मिलेगा, जिससे आपके जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो बहुत ही काफ़ी हेल्दी होंगे और उनको किसी भी परेशानी और तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके बच्चे हमेशा स्कूल में आएंगे और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपसे कुछ सवालात होंगे। आपको जो है हजरत पानी कहाँ से मिलता है? पानी तो बीएमसी गवर्नमेंट का है, बीएमसी लाइन है जो सप्लाई होती है, जो झील वगैरह से डायरेक्ट, और जो होते हुए समझ जाओ पूरे जो एरिया में, पूरे मुंबई में जो सप्लाई होती है। और जो मेन सप्लाई में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं समझता हूँ। जो प्रॉब्लम होता है जो एरिया में होती है, जो अपने जैसे धारावी एरिया हो गया, माहिम एरिया हो गया या दादर एरिया हो गया, समथिंग जो भी एरिया वाइज होते हैं, जो घनी आबादी और झोपड़े वगैरह जो होते हैं उस जगह से होता है, क्योंकि वो सप्लाई जो होती है समझ जाओ बहती है काफी बड़ी, जो आस्ते आस्ते होके सलम तक पहुंचते हैं वो छोटी हो जाती है, मतलब उसमें इंचेस के हिसाब से पानी रहते हैं उसमें। और वो सप्लाई जो होता है उसके बाद जो भी चाहे स्कूल्स हो या बिल्डिंग्स हो या सलम हो या फैक्ट्री हो या जहां भी हो, तो उसके जो इंचेस होते हैं सब कम हो जाते हैं, आधे इंच के हो जाते हैं और 1 इंच के हो जाते हैं, पौने इंच के हो जाते हैं, जो बीएमसी से रिलेटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट से पास होता है। और वो पास होते हुए जो ठीक है, जहाँ पे ज्यादातर मैंने देखा है कि पानी का जो लाइन सप्लाई होता है वो ज्यादातर गटर से लग के ही ज्यादा पाइप सबसे लोगों के, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया रहते हैं। तो कंजेस्टेड एरिया में कैसा है कि एक तरफ रास्ता चाहिए चलने को लोगों को और एक तरफ पानी वगैरह का लाइन लगा रहता है। तो ये ज्यादा जो पानी का जो प्रॉब्लम आता है, अगर आता है तो बारिश में ज्यादातर खास तौर आता है, मानसून के वगैरह, मानसून के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है पानी का। और बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि वो पाइप सालों साल जो चैम्बर ड्रेनेज लाइन है या उस जगह से होके आते हैं, तो उसमें पानी जमा, बारिश के जब ड्रेनेज जमा हो जाते हैं तो उससे पानी जो पाइप लाइन होते हैं जो, तो वो आस्ते आस्ते सड़ते आते हैं बराबर ज्वाइंट पे। जब सड़ते आते हैं तो कहीं ना कहीं से वो डैमेज होते हैं, लीकेज होते हैं, तो वो पानी जो गटर के होते हैं वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं पाइपलाइन में। जिस वक्त पानी का टाइम रहता है तो वो टाइम पे तो मैं समझता हूँ उस वक्त मिलते हैं पानी उसमें गटर सप्लाई में। लेकिन जब पानी का टाइम खत्म हो जाता है, जो टाइमिंग होता है कि कहीं कहीं एरिया में मॉर्निंग में है, कहीं कहीं आफ्टर शाम में है, इवनिंग में ऐसा है, तो जो पानी का जो समय नहीं होता है वो समय में लाइन बंद रहती है। तो उस वक्त जो वो पाइप में डैमेज रहते हैं, वो डैमेज गंदा पानी जाते रहता है अंदर और जब वो पानी जाता है, जब हम शाम में कभी हमने नोटिस किया है कि अगर वो चालू करते हैं जब मोटर या पानी, तो शुरुआत में 2-3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी बहुत गंदे आते हैं, तो वो सब गटर के पानी रहते हैं। तो लोगों को ये चाहिए कि पहला तो जब भी अपने घर में पानी जब भी पानी आता है तो शुरू में नल खोल करके कम से कम 2-3-4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी वेस्ट करें, इसलिए कि वो पानी गटर से कनेक्ट रहते हैं, पाइपलाइन में कनेक्ट रहते हैं पानी के, इसके वजह से पानी गंदे आते हैं। और दूसरी बात हमारे इधर तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, क्योंकि हमारा ठीक मेन रोड पे है, लेकिन वो रोड जो मेन रोड पे लाइन है उधर से हमारा साइड से लाइन होते हुए आ रहा है। लेकिन अभी ये कैसा है कि फिर भी हम हर साल अपने स्कूल की टाकी जो है हर साल उसको वॉश कराते हैं, वॉश करा के उसमें हम पानी भरा करके और हम मेडिकल से एक ये दवा आती है जिसको हम हर साल डालते हैं, ये दवा है जी 1 मिनट। अच्छा ये दवा डालते हैं आप? जी बराबर, क्लोरीवेट ये बोतल पूरा एक अक्खा बोतल
हम अपनी 2000 लीटर की टाकी में डालते हैं, जो 1 साल तक इसकी वो रहता है जी। 1 साल तक का उसको सेफ रखे रहता है, अच्छा किए रहता है। 2000 की तो आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी पास ऑन की, जो मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के वक्त में अपने बच्चों के पेरेंट्स को भी ये सब बताते कि आपको पानी पहले काफी वक्त छोड़ना है और उसके बाद में उसको बॉईल करके पीना, प्रिकॉशंस वगैरह की आप एजुकेट करते हैं उनको? अभी हमारा 2 दिन पहले पेरेंट्स मीटिंग था जी। तो हमने पेरेंट्स को खास तौर पानी को तो लेके हमने कहा है, बच्चों की बीमारी को लेके कहा है, और प्लस खास तौर उनकी जो टिफिन जी कि आउटसाइड बाहर का कोई भी चीज बच्चों को दो मत, कि उससे खाने से हाइजीनिक बच्चों को बीमारी हो सकती है, हो जाएगी। और दूसरी बात ये जो पानी का तो है, पानी का और बारिश के मानसून सीजन में ऐसा होता है कि इसमें मच्छर पैदा ज्यादा होते हैं गंदगी बीमारियों से, बारिश के हिसाब से। इसमें लोगों को अलग अलग तरह की मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, समझे, मतलब चिकनगुनिया, मतलब इस तरह की कई बीमारियां लोगों को, बच्चों को होते हैं, बड़ों को भी होते हैं इस चीज के, और वो सब मच्छर से होते हैं। तो पानी खुला रहता है, पानी जमा रहता है, दो चीज होता है, या खुला रहेगा पानी हमारे घरों में, या जमा रहेगा कहीं पानी, या कहीं भी मोहल्ले में, एरिया में, उस पानी से मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब होते हैं, जिससे हो जाता, कोई भी बच्चों को, बड़ों को, सबको होते हैं चीज। और जो बच्चे अगर बीमार होते हैं तो हम उनके पेरेंट्स को खासतौर ये बोलते हैं, आप बच्चों को स्कूल मत भेजिए, आप बच्चों को स्कूल मत भेजिए, आप उसका बराबर से ट्रीटमेंट कराइए, इलाज कराइए, और उसको घर पे रखिए बच्चों को, क्योंकि आप स्कूल भेजेंगे तो स्कूल भेजने हो सकता है दूसरे बच्चों को भी हो सकता है उस चीज का होने का डर रहता है, तो इसलिए वो बच्चों को खतरा ना हो दूसरे बच्चों से, आप बच्चों को जब तक ठीक नहीं होते बच्चे तब तक आप स्कूल ना भेजिए, हाँ। और बाकी ये तो पानी को लेकर रिलेटेड है जो हमने आपको बताया सब, बाकी हम लोग तो टिफिन को भी लेके बातें हर पेरेंट्स को कहते हैं कि बाहर की चीज, बाहर के फूड बिल्कुल ना दीजिए बच्चों को, घर का बना के सब्जी रोटी जो है घर का दीजिए, जो भी दीजिए घर का दीजिए आप बना के। ये नहीं कि आपने बच्चों को लेस दिला दिया, आपने बिस्किट दिला दिया, बच्चों को कुछ भी मतलब बाहर की चीज दिला दी, वो बच्चे खा करके उनके फिर भूख मरी आती है, और बाहर की चीज खा के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। उनको घर का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, उनको आप बोलेंगे बेटा खाना खा लो तो बोलेंगे नहीं भूख नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछो बेटा लेस खाओगे, ये खाओगे, हाँ, वो फौरन बोलेंगे हाँ खाएंगे, क्योंकि वो उस चीज की हैबिट, आदत हो जाती है बच्चों को, उस चीज को उनका मतलब सिस्टम पेट का मतलब वो जो है होता है, खराब हो जाता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जी। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो जो प्रिकॉशंस है वो आप उनके पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है, और जब बच्चे बीमार होते हैं तो फिर वो डॉक्टर वगैरह के पास में आप उनको बोलते हो कि रिकमेंड करते हो कि उनके पास भेजे, तो फिर क्या वो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना? वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा शायद। जी, दरअसल ऐसा है कि देखिए हर इंसान की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है फर्स्ट जी, जिसके जैसे मतलब एक कहावत होती है हमारे उसमें कि जितनी बड़ी चादर उतना पैर फैलाओ जी, और दूसरी सब कोई मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई लो क्लास के लोग हैं, कोई हाई क्लास के लोग हैं। तो इंसान जो हाई क्लास के तो बड़े बड़ी हॉस्पिटल से चल जाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो एमडी और एमबीबीएस मतलब एमबीबीएस ये सब डॉक्टरों के पास जाते हैं। जो लो क्लास के एकदम है वो बेचारे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर छोटे मोटे डॉक्टर्स इनके पास जाते हैं, मजबूरी में छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनका उतना पैसा रहता नहीं कि अगर वो 200-300 की दवा ले लेंगे तो उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो मजबूरन में उनको सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो वहाँ से उनको जो मुफ्त इलाज, मुफ्त में दवा मिलती है, तो उनसे उनका गुजर मतलब दवा लेकर बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं वो। जी जी। तो किस तरीके के सिम्टम्स बच्चों में पाए जाते हैं कि कभी ऐसा होता है कि स्कूल में फोर्स होता है कि बच्चों को छुट्टी नहीं करना है, तो कोई माँ बाप भेज देते हैं जब तबीयत खराब होती है बच्चों की, तो उनको टीचर्स को पता कैसे चलता है कि ये बच्चे बीमार है? एक्चुअली लॉकडाउन से 2020 में लॉकडाउन लगा था जब जी, तो लॉकडाउन से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दिया था, जो व्हाट्सएप और गूगल के थ्रू जी, इससे इस हिसाब से गूगल में मीटिंग और अपना व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके उसमें मैसेज करना, लोगों को होमवर्क देना बच्चों को, ये लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ जो आज तक चल रहा है कंटिन्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं, ज्यादा कुछ रहता है, तो उनके पेरेंट्स ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज करते हैं कि आज मेरे बच्चों को बीमार है, बुखार है या समथिंग जो भी है इस तरह का। अभी एक बच्चा कल इंडिपेंडेंस डे था, तो कल इंडिपेंडेंस डे में एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था उसका, और फिर वो बच्चा समझो एंड टाइम पे 2 दिन पहले बीमार हो गया। हाँ, तो 2 दिन पहले बीमार हो गया। फिर वो बच्चे को ठीक है, हमने उनके पेरेंट्स से बात किया, तो उनके पेरेंट्स को हमने कहा ठीक है बच्चे का पहला ख्याल रखिए, बच्चे का पहला ख्याल रखिए। बोले नहीं हम उसको हम दवा खिला के हम लेके आएंगे, और वो लेके भी आए थे, लेके बच्चा माशाल्लाह ठीक था, खेल रहा था, अच्छा था। ये था कि कल 15 अगस्त कल फिर बच्चा आएगा, समझे। 14 अगस्त तक बच्चा आया, और 15 अगस्त को उसमें पार्टिसिपेट था बच्चों का, वो अपना
वो बच्चा भगत सिंह बना हुआ था बच्चा, उसको भगत सिंह का रोल फ्रीडम फाइटर में, समझे। तो वो बच्चा, लेकिन ऐसा हो गया कि रात फिर बच्चों को काफी बुखार चढ़ गया। हाँ, तो मॉर्निंग में प्रोग्राम था, बच्चा नहीं आया, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कि जान है तो जहान है, फर्स्ट पहली चीज तो ये। और दूसरी बात, फिर हमने वो बच्चे का रोल कट करके, और जो बच्चे बाकी महात्मा गांधी जी का जो है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, अम्बेडकर जी का, सबका हमने जो बच्चे बाकी जो पार्टिसिपेट करे थे वो बच्चे सारे पार्टिसिपेट किए। हाँ जी। और उस बच्चे की जगह हमने एक दूसरे बच्चों को जो भगत सिंह बने हुए थे उनकी जगह पे उसको हमने टेम्पररी अरेंजमेंट एक दिन में करके उसको हमने टेम्पररी थोड़ा सा हमने किया उसको, और बच्चों को आराम करने के लिए हमने कहा दवा लीजिए और आप बेड कीजिए, और बच्चों को मंडे से एग्जाम है बच्चे से। तो हमने पेरेंट्स को ये भी कहा कि आप बच्चे का पहला ख्याल रखिए, सेहत अगर उसकी ठीक रहेगी, तबीयत ठीक रहेगी, तो ही आप उनको स्कूल भेजिएगा एग्जाम में, और नहीं तो ओके, नो प्रॉब्लम, हम उसका बच्चे का री एग्जाम ले लेंगे आगे चल के वापस से। तो हमारे बच्चे जो है परसेंटेज के हिसाब से मॉनसून या नॉर्मल टाइम में कितने परसेंटेज बच्चे बीमार हो के मतलब स्कूल नहीं आ पा रहे, मतलब कितना, जैसे कि परसेंटेज बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पाते बीमारी की वजह से? अब ऐसा है कि परसेंटेज बोले तो हर साल का है ये, हर साल समझ जाइए। और आपकी ये साल में जो देख रहा हूँ, काफी मानसून में ना काफी बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये साल तो कुछ ज्यादा हो रहे हैं, नहीं तो होते तो हर साल है, लेकिन ये साल ऐसा हो गया कि एक वायरल फीवर भी होता है, एक घर में एक किसी को होता है तो दूसरे को भी होता है, हो जाता है, वो बड़े बच्चों सब में होता है वो चीज। इस तरह से एक वायरल फीवर जो होता है वो भी होता है, जो मलेरिया डेंगू के अलावा जो होता है। तो ये चीज कैसा है कि आपकी, मैं देख रहा हूँ कि हर दिन ग्रुप में मैसेज आता है कि टीचर्स मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, उसको बुखार है, आज वो नहीं आएगा। फिर दूसरे ग्रुप में अदर मैसेज दूसरे दिन आ रहा है कि टीचर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मतलब डेली का डेली हर एक बच्चे का इस तरह का पेरेंट्स का मैसेज आता है। बराबर। तो आपका ये कहना है कि बच्चा जो वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये डॉक्टर्स ने भी कहा था जब मैं उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो वायरल फीवर जो है दूसरे बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से सारे बच्चे जो है अफेक्टेड हो जा रहे हैं। तो आप स्ट्रिक्टली उनको मना करते हो कि जब वायरल फीवर हो, कोई भी बीमारी हो, तो फिर वो स्कूल ना आए। जी। तो परसेंटेज जो है काफी बढ़ चुका है ये साल, जैसा आपने कहा। तो अब इसको रोकने के लिए जो है, यही हमारी कंपनी का असल मकसद है कि हम जो है फ्री जितना हो सकता है डोनेट करें स्कूल्स में, पहले तो, ताकि वहाँ से बच्चे जो है सेफ रहे, हेल्दी रहे, और स्कूल में उनके एजुकेशन में कोई दिक्कत ना हो, और उस वजह से जो है पढ़ाई उनकी हमेशा चलती रहे। और आपके स्कूल में किस तरीके के बच्चे मतलब आते हैं? हमारे स्कूल में तो ज्यादातर लो क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के बच्चे तो आते नहीं है, बस लो और मिडिल क्लास के बच्चे, ज्यादातर लो क्लास के बच्चे ज्यादा रहते हैं जी। और दूसरा कैसा है, हमारे वालिद साहब का एक अरमान था जो आज मैं उसको कंटिन्यू करके चल रहा हूँ जी, कि उनका कहना था, पहले वो उन्होंने भी जब अपने बच्चों को पढ़ाया था, जैसा मुझे हमें हमारी बहनों को पढ़ाया था जी, तो उन्होंने भी दूसरे स्कूलों में जाके लाइन लगवाया था, मतलब कैथलिक स्कूलों में ये वो, तो उधर लाइन लगाने के बावजूद भी मतलब कैसा होता कि लोग बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, डोनेशन लगता था वहाँ पे, वो टाइम पे भी डोनेशन लोग मांगते थे ऐसा, और उतना लोग बस पैसे नहीं रहते थे कि वो डोनेशन दे पाए जी। तो ये सोच के उन्होंने एक स्कूल का कायम करने का इरादा किया था कि मैं एक स्कूल कायम करता हूँ जो एक मुस्लिम मेजोरिटी के लिए एक स्कूल हो, जो इंग्लिश मीडियम से हो, और जो लोग उसका फायदा उठा सके, जो गरीब बच्चे वो भी पढ़ सके, जो वाकई में जो मजबूर है, जिनके पास किसी के ऐसा भी है कि किसी के हस्बैंड नहीं है, या हस्बैंड है तो बीमार है, बेड रेस्ट पे है, तो ये सब चीज को लेते हुए उन्होंने ये सोचा कि ठीक है स्कूल कायम करेंगे, जिसमें स्कूल के इंग्लिश मीडियम ही स्कूल रहेगा, लेकिन वो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके कुछ आगे बन सके, बढ़ सके। और जो पेरेंट्स जो धक्का खाते दूसरे स्कूल में जब नहीं होते तो मजबूरन उनको म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ता था, तो ताकि वो चीज उनको ना करना पड़े, वो हमारे स्कूल में आ जाए। ये सब उनके प्लान थे जो वो चला भी रहे थे, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा चल भी रहा था। बाकी लॉकडाउन कोरोना में उनका डेथ हो गया, और फिर उसके आगे मैं उस चीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं वही चीज को रखा हूँ कि जो अगर मुझे आप है या कोई भी है अगर जिनको मैं जान रहा हूँ जी जी जी, वो अगर मुझे सेटिस्फाई देंगे कि ये बच्चा वाकई में मजबूर है, उनके पेरेंट्स में उनके हस्बैंड नहीं है, या उनके घर के हालात बहुत खराब है, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए आज भी मैं तैयार हूँ। इस तरह और बच्चे पढ़ भी रहे स्कूल में, जिस चीज का मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, प्रूफ जो है, तो इस चीज को आप खुद देखेंगे तो आपको, क्योंकि बोलना और करने में बहुत फर्क होती है। तो बोलने में तो लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन मतलब जो कुछ मैं शो कर सकता हूँ, जो कुछ वाकई में दिखा सकता हूँ आपको कि देखो ये बच्चे हैं, क्योंकि मैं कोई पेरेंट्स को जलील नहीं करना चाहता कि उनको मैं
स्टेज पे ला करके मतलब ये नहीं कह सकते देखो इनके ये पेरेंट्स हैं इनके, क्योंकि भाई उनकी भी इज्जत है। तो मैं आपको बाकी ठीक है क्लास में लाके दिखा सकता हूँ, आपको वो बच्चे को पेरेंट्स को लाके जब अपने ऑफिस में बुला के बात करा सकता हूँ, वो खुद आपको बताएंगे क्या सच है क्या गलत है। जी। और बाकी जितना हेल्प होता है मैं हेल्प करता हूँ बच्चों को। हाँ बाकी जो उस लायक हो, लेकिन ऐसा भी बहुत से पहले हमारे साथ वाली साहब के साथ भी हुआ है और हमारे साथ भी बहुत से ऐसा हुआ है जो उस लायक नहीं रहते, लेकिन हम अपने आप को गरीब बता करके उसका फायदा उठाते हैं। जो गरीब दूसरे का हक होता है वो छीन के खुद लेते हैं। जैसे आज लोगों में चल रहा है RTE, जो गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन निकाली है। जी। राइट टू एजुकेशन जो निकाली है वो गरीब बच्चों के लिए निकाली है गवर्नमेंट, गरीब बच्चों, लेकिन उसका फायदा बड़े लोग भी आज उठा रहे हैं। मैं अपने आंखों से देखा हूँ इस चीज का। जिनके पास सब कुछ है, गुडवेल है, उनके घर गाड़ी सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं फिर भी कि अच्छी से स्कूल में पढ़ाए और फ्री में पढ़ाए। ये इस तरह का लोग भी फायदा उठाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो अच्छे लोग हैं वो ठीक है, आप अपना आपके ऊपर ने आपको दिया है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, पैसा भर के बच्चों को पढ़ाइए। बाकी जो गरीब बच्चे हैं जिनका हक है वो उनको उनके लिए रहने दीजिए। जैसा एक होता है ना, कोई कोटा आता है राशन का या किसी चीज का, तो मालूम पड़ा गरीब के घर तक राशन नहीं पहुंच रहा है, वो कोई और उठा के राशन लेके जा रहे हैं, या तो उसको सेल कर दिया जा रहा है तो कोई उठा के अपने घरों में रख लिया जा रहा है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे कहने मतलब। हजरत आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई है और आपने अपने वालिद साहब के बारे में भी बताया कि उन्होंने मेहनत की और आज उनके वजह से बहुत सारे लोग फ़ायदा हासिल कर रहे। तो ये लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपका जो क्वालिटी है, पानी का जो क्वालिटी है, आप खुद उसको कितना रेट करना चाहोगे कि कितना सेफ वाटर आप प्रोवाइड कर पा रहे हो अपने बच्चों के लिए? ये ऐसा है कि ये तो हम तो बोलेंगे जो है, हम तो चाहेंगे कोशिश करेंगे कि हम जैसे हमने भी आपको दिखाया कि हम हर साल प्रोडक्ट यूज करते हैं टंकी में अपने जो डालते हैं। तो ये इस तरह की। और दूसरी बात, आप है या अदर पेरेंट्स है, कोई भी है, कोई भी चाहेगा मैं साफ सुथरा पानी पीऊँ। अगर पानी में एक कचड़ भी अगर आता है तब मुझे नहीं पानी गंदा है, इसको जरा फेंक दो, दूसरा पानी दीजिए। ऐसा होता है, चाहे हम घर में पिए या होटल में पिए या समथिंग कहीं भी पिए, तो हम उसको साफ सुथरा पानी पीना चाहते हैं। हर कोई सेहत अपनी अच्छी रखना चाहता है, तो हर कोई चाहता है कि भाई हम खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाए, तो अच्छा क्लियर और प्योर वाटर हर चीज सब लोगों को पिलाया जाए, साफ सुथरा दिया जाए, ताकि किसी के बीमारी ना हो, ना किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो किसी को पीने से किसी चीज को। इसके लिए तो आपके स्कूल में तकरीबन कितने बच्चे और टीचर्स होंगे? हमारे स्कूल में भी 150 बच्चे हैं फिलहाल। 150 जी। और टीचर्स तो 12 टीचर्स हैं। 12 टीचर्स है और मतलब टोटल स्टाफ 16 है, 16 स्टाफ है टोटल जी। हाँ, जिसमें दो प्यून है, वॉचमैन है, ऐसा करके मतलब टोटल क्लर्क है, प्रिंसिपल, सब मिला करके टोटल 16 स्टाफ है, पूरा 15 से 16 स्टाफ है। कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर क्लास भी है, कंप्यूटर भी है बच्चों के लिए। और बाकी ये तो एक एजुकेशन है जो एजुकेशन के गवर्नमेंट के रिलेटेड चल रहा है, जो हमको फॉलो करके चलना पड़ता है। जी। बाकी एक हमारे जो जैसा हम मुस्लिम है, तो हमारे इस्लाम के हिसाब से हम एक दीनी एक क्लास भी रखे हैं जिसको आलमाना बोलते हैं। जी। आलमाना कोर्स लड़कियों का खास तौर, तो वो भी हमारे इधर चलता है। हाँ, आलमाना कोर्स। तो उसमें कितने बच्चे? उसमें कुछ 27 से 28 लड़कियां अभी फिलहाल प्रेजेंट में है। 30। और वो पूरा गर्ल्स का स्टाफ है पूरा। और उसमें एक आलिम रहते हैं जेंट्स, और बाकी टोटल टीचर्स और बच्चे जितने सब गर्ल्स ही रहती है, लड़कियां रहती है। और कितने स्टैंडर्ड से लेकर कितने स्टैंडर्ड तक है हमारे स्कूल में? हमारे स्कूल में जूनियर से लेकर 10 तक है। मतलब हायर एजुकेशन तक का अवेलेबल है जी। और आप कुछ कहना चाहोगे हमारी माडी ड्रॉप जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, उनको आप कुछ मैसेज सेंड करना चाहोगे अपने तरफ से कि वो जो एफर्ट्स डाल रहे उसके बारे में? नहीं, जो आपने मुझे कंपनी का नाम बताया माडी ड्रॉप जी, वो उनके ऊपर मैं एक बार थोड़ा रिसर्च करता हूँ। उनका जो आपने मुझे भेजा है उसको पहले मैं रीड करता हूँ, समझता हूँ, और जो हो सकेगा मैं सपोर्ट भी करूंगा और सपोर्ट भी लूंगा भी उनसे जो हो सकेगा। और पहला कोई भी चीज कैसा है कि कोई चीज आता है तो उसको हमको पहले देखना चाहिए, एनालाइज करना, हाँ जी, समझना चाहिए, उसके बाद ही उसका हमको आंसर देना चाहिए। चाहिए। तो हम बहुत खुशनसीब है
कि हमारा जो है ताल्लुकात आपके साथ में बना है और इंशाल्लाह आगे चल के जो है बहुत सारे यहाँ पर कैंपेन्स होंगे और बहुत सारी अवेयरनेस होगी और बहुत जो है हमको यहाँ पर काम करना हो सकता है आपके ज़रिए से यहाँ पर हज़ारों लाखों का बहुत फ़ायदा हो जाए लोगों का। जी, जो आपकी टैंक है उसकी आप क्या साइज़ बता रहे थे? 2000 लीटर 2000 लीटर 2000 लीटर है। तो वो पानी रोज है डेली जो है पानी डेली खत्म नहीं होता है, डेली का डेली खत्म होता है, उसमें मुश्किल से 500 600 700 लीटर खत्म होता है रोज। और हाँ रोज, और 1200 1100 1000 लीटर फिर भी समथिंग रहता है उसमें पानी जी। जब वो हम जो दवा डालेंगे तो वो उसमें दवा रहना चाहिए जी, उसका दवा का असर रहना चाहिए, तो दूसरा पानी उसमें आएगा, हाँ वो उसमें मिल करके इंक्रीज मतलब होगा इसके साथ में, तो वो उसको मिलकर वो इफेक्ट करेगा, मतलब कि ठीक है उसके दवे का असर रहेगा उसके अंदर। और अगर वो हम 2000 लीटर पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो फिर वो दवे का पूरा असर खत्म हो गया, 2000 लीटर पानी खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट दिन तो वो दूसरा पानी आएगा फिर वो तो हाँ। पानी तो इसका मतलब हमको डेली डालने की बात रहेगी, टैबलेट डालने की बात रहेगी। हाँ। और टैबलेट का भी कैसा होता है कि टैबलेट की भी एक कैपेसिटी होती है दवा में या ड्रॉप की, जैसे हम छोटे टैंक में डाल रहे हैं अगर ना, तो वो जो हमने आपको ड्रॉप दिखाया था वो ड्रॉप का भी कैसा है कि अगर जो उसका लीटर है, लीटर के हिसाब से उसको बूंद डालना पड़ता है, और पूरा अक्खा जो हम बॉटल जो डालेंगे वो 2000 लीटर के हिसाब से डालेंगे, वो पूरी बॉटल हमने जो दिखाया था आपको 2000 लीटर के हिसाब से दिखाया था। जी जी जी। तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि वो जो टैबलेट है ना, सेरेमिक टैबलेट, तो वो टैबलेट जो है अगर हम जैसे कि मटके में डालते हैं या मतलब कोई भी जहाँ पर पानी पीने का जो इस्तेमाल करते हैं, वो टैबलेट एक बार डाल देंगे, वो ईंट के तरीके की एक सेरेमिक टैबलेट है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो वो टैबलेट अंदर अगर डाल देंगे, आप रोज़ रिफ़िल करते रहिए वाटर, उसका असर चलते रहेगा। तकरीबन जैसे छोटी है, जैसा मटका है तो उसमें तकरीबन 1.5-2 साल भी चलेगा। अगर आपकी टैंक की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा पानी है तो फिर उस हिसाब से जो है फिर टैबलेट का वो जो रेशियो जो होगा दिनों का वो कम होगा। तो अब कितनी टैबलेट्स लगेंगी क्वांटिटी के आपके टैंक के हिसाब से, वो हम जब डालने के वक्त में वहाँ से हम पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे, उस चीज़ को टेस्ट करेंगे और जिस हिसाब से रिपोर्टिंग आएगी उस हिसाब से हम उसको यूटिलाइज करेंगे। पर जहाँ तक कि मुझे पता है कि अगर आपकी जो पीने की जो पानी है, जैसे अगर एकदम बड़े टैंक में डालेंगे तो पानी टॉयलेट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है और दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर एक स्पेसिफिकली पीने का जो पानी का टैंक है, अगर वाटर टैंक में डाल देंगे तो वो 100% एक्यूरेट शुद्ध पानी जो है बच्चों को यूटिलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो वो मैं टैंक का वो मैं फ़िल्टर भी लूँगा जो बाहर है। तो कितने फिल्टर्स है अपने पास? फिल्टर्स तो अपने पास एक ही है, एक है। हाँ बराबर, दो नल का, टू टैप का, टू टैप का है। और बाकी जो मैंने आपको बताया 2000 लीटर का वो अलग है। और लेकिन जो भी आपने, मैं आपकी बात मैं इस जगह रुकूंगा, जो आपने टैबलेट्स कहा है जी, वो टैबलेट्स पर डे जी जो होता है कि आपने डाला हाँ। पर डे वो कितना उसमें से यूज होगा, मतलब उसकी आप हमको कैसे पता चलेगी कि वो टैबलेट जो है डेली इतना ही यूज कर रहा है, मतलब कि बाकी हाँ। वो टैबलेट 1 साल तक रह रहा है। हाँ हाँ हाँ। जैसा आपने कहा कि जो टैबलेट का असर होता है ना, वो किस तरीके से हम लोग को बेनिफिट देगा, तो ये टैबलेट एक अंदर ड्रॉप करना है हमें। सिर्फ वो एक टैबलेट है इतना बड़ा, तकरीबन सेरेमिक टैबलेट, यानी एक सिल्वर कलर का होगा जो ईंट के तरह होगा। वो टैबलेट एक बार ड्रॉप करेंगे तो फिर पानी रिफिल करेंगे हम, पानी रिफिल होते रहेगा, रोज़ रिफिल होगा या दिन में कई बार रिफिल होगा या रोज़ रिफिल होगा, जैसे भी होगा तो टैबलेट अंदर उसका असर छोड़ने लगेगा और उसको पूरा प्यूरीफाई करने लगेगा। अब जैसे वाटर प्यूरीफायर जो है, डॉक्टर लोगों से जब हम इंटरव्यू उनसे लिए तो फिर वो बोले कि वाटर प्यूरीफायर में तो और बच्चे बीमार हो रहे, क्योंकि उसकी फिल्टरिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, उसके मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया वो खींचता है ना, तो उसकी एक अलग तरीके की सर्विसिंग होती है, तो उससे और बीमार होने लग गए। डॉक्टर बोलते जो नॉर्मल टैप वाटर पीते
उनसे ज्यादा पाया गया है कि जो फिल्टर पानी पीते ना वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। फिलहाल जो कुछ चल रहा है मैंने भी देखा है इस चीज पे जी। जो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, ऐसे बहुत सी कंपनी है जी जी जो फिल्टर पानी का जो एडवर्टाइजिंग करती है, हाँ। लेकिन उससे बच्चे और बीमार हो हाँ, ऐसा स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था बहुत बेस्ट है वो। जी जी। हमारे पास भी वो टाइम था, लेकिन वो ऐसा लगा बहुत बेस्ट है, लेकिन जब देखे कि उसको वो पानी मतलब अब वो फिल्टर लगाए भी थे क्या? जी हाँ, बहुत पहले लगाया था मैं। जी जी। लेकिन वो फिर जब हमको लगा कि नहीं ये प्योर वेरीफाई नहीं, इससे भी कि मशीनरी ऐसे बस कंपनी का करती है एडवर्टाइजिंग कि क्या हाँ बस यूज करो। अब इंसान की सेटिस्फाई में अच्छी चीज पी रहा हूँ, लेकिन वो अच्छी चीज नहीं, उसको बाद में प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही है और क्रिएट हो जा रही है। जी। तो ये टैबलेट का फायदा ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, कुछ सिर्फ एक टैबलेट अंदर ड्रॉप करना है और इसको हम टेस्ट भी करवाएंगे। जब हम टैबलेट डालेंगे इधर पानी का जो है उसको यूटिलाइजेशन के वक्त में उसको टेस्ट भी करवा देंगे लैब में। ज़्यादा नहीं, कुछ मिनट का काम है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये टैबलेट का जो असर, ये जो जितना असर दे रहा है तो उसका कैसा असर हो रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो पानी पर। तो कंटिन्यूसली आपको 100% एक्यूरेट 99.9% आपको एक्यूरेटली वो आपको एकदम फिल्टर, वो एकदम अच्छा पानी मिलेगा और आपके कैपेसिटी के हिसाब से वो टैबलेट 2 साल का है। अगर टैंक बड़ी है थोड़ी हमारी फिल्टर प्यूरीफायर, तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होने लग जाएगा। और मेरी ये भी नियत है, हमारा ये भी इंटेंशन है, आप खुद तो बच्चों को ये पानी पिलाए और अगर हो सकता है आप अपने स्टूडेंट्स के जो वो है जो माँ बाप है, हम उनको भी एजुकेट करेंगे इसके बारे में। आप भी हमारा साथ दीजिएगा और उनको भी ये हेल्प करेंगे। जी जी। और ऐसा है, सॉरी मैं आपकी बात रोकूंगा इस जगह पे, कि आप जो टैबलेट्स की बात करें, देखिए ये तो हम ठीक है, आप हमको बता रहे, सजेशन दे रहे हैं, तो हम आप उस पर हम सोचेंगे, उस पर हम अमल करेंगे जी। बट लेकिन ये जो टैबलेट है ये अभी ये मेडिकल लाइन जो होती है, मेडिकल लाइन में रिसर्चिंग होगा, जो रिसर्चिंग में स्टडी होती है, स्टडी होगा, रिसर्चिंग पे पता चलेगा कि ये हमारे लिए मतलब कितना बेनिफिट है, हाँ कितना उसके लिए अच्छा, हमारे सेहत के लिए अच्छा है वो जी। ये चीज तो मेडिकल लाइन ही हमको सेटिस्फाई करके पूरा स्टडी दे देगी, हम तो डायरेक्टली उस चीज को प्रोवाइड नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि कैसा है कि कल को कुछ हो गया तो आजकल अपोजिशन या लोगों मतलब जिम्मेदारी तैयार रहते हैं बराबर बच्चों को ये नुकसान हो गया। इन्होंने जैसे मिड डे मील की बात करता हूँ एग्जाम्पल, कि मिड डे मील जो आज बच्चों में कैसा है कि अगर ढंग से नहीं देते हैं तो बच्चे बड़ा बीमार पड़ते हैं खाने के बाद। इस तरह ये भी चीज जो आप बता रहे हैं, तो उसका हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड और मेडिकल लाइन में रिलेटेड सर्च हो करके ही वो यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और हमारा ये मेन मकसद है, हमारा मिशन और मकसद आपको बताना चाहूँगा। हमारा मकसद तो ये कि हम गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहते और ये जो टैबलेट है हम गवर्नमेंट को सेल करना चाहते। और जो $50 का जो टैबलेट है हम गवर्नमेंट को बहुत ही कम किफ़ायती दाम में देंगे। और हमारा इंटेंशन ये चीज़ से पैसा कमाना नहीं है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम किस तरीके से लोगों की मदद करें। वरुण गांधी जो गांधी साहब के रिलेशन में है और वो अमेरिका में इनको जो बाइडेन साहब ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया है। और हमारा जो मकसद है, यहाँ की स्कूल यहाँ पे डोनेट हम करते रहे, बट हमारा मकसद है कि ये जो बात है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट को परचेज करे जो मीट कॉस्टिंग में है और उसके हिसाब से वो सारे लोगों को सप्लाई करे वो प्रोडक्ट। हमारा मकसद गवर्नमेंट तक पहुंचना है एक्चुअल में, और सब चीज़ का रिसर्च होगा, हर चीज़। और आपको कुछ और कहना है प्रोडक्ट के बारे में? नहीं, आप मैं चाहता हूँ कि जो भी हो लीगली हो जी, और जी। सबकी सेहत के लिए अच्छा हो जी जी जी। किसी के लिए हानिकारक ना हो, वरना किसी से गलत हो, बस वही सब चाहता हूँ। और आप उसके जरिया बने कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाए, और आप एक तरीके से जरिया है कि आवाम जो तकलीफ में परेशान है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं हेल्प करना चाहती, गवर्नमेंट तो हमारी बहुत हेल्प करना चाहती है, पर लोगों के अंदर इतना गुस्सा है और इतना मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वो इतने परेशान हो चुके, उनकी
गलती नहीं है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट भी पहुंचना चाहती है उन तक का, और हम जैसे लोगों का काम है कि हम किस तरीके से आवाम की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए और गवर्नमेंट उस चीज़ को हल करे। और ये मसला जो है, ये बीमारी का, जैसा आपने कहा कि ये साल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें पूरे धारावी को पूरा फ्री करना है बीमारियों से, और इसके ज़रिए जो है आप बन रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बन रहा हूँ, और इस चीज़ को हम इंशाल्लाह आम करेंगे, गवर्नमेंट तक भी ये प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे ताकि वो टेस्ट करके लोगों तक का पहुँचा सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।